Now, good morning to everyone. Now, let us start with a chapter that is Indigo. And yesterday, I had summarized you the chapter, main events and main incidences that are given in the chapter. I am reading. While I am reading, you all have to look in your books. Indigo, actually, this is written by a journalist, Louis Fisher, and this extract has been taken from the life of Mahatma Gandhi, written by Louis Fisher. When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, so यहाँ पर जो pronoun I use where students, this pronoun has been used for the author, that is Louis Fisher. यहाँ पे लुइस फिशर बता रहे हैं कि when he visited Gandhi in the year 1942 at his ashram, और उनका आश्रम कहाँ पे है? It is situated in Ahmedabad, in Sevagram, in central India. He said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. I will tell you, this is said by Gandhi ji. तो यहाँ पर जो है गांधी जी किंग, यहाँ पे जो लुइस फिशर है उसको बताते हैं what happened. I decided. Now here Gandhi ji started telling कि what happened. Then I decided to urge. Urge यहाँ पर क्या है? इच्छा. The departure क्या होता है? जाना. Of the British, it was in 1970. तो यहाँ पर जो गांधी जी हैं, now he is telling about the incidents of 1917 when the Britishers he departed India. He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. So here, ये जो महात्मा गांधी हैं, actually ये December 1916 की बात है when he went to attend annual convention. यहाँ पे जो word convention है, it means the meeting of the National Indian Congress, जो जिसे हम INC बोलते हैं. तो ये just he went there to attend this convention party in Lucknow. There were 2,301 delegates. Underline the word delegates, students. Delegates means representatives. जो ये यहाँ पर जो attend करने गए थे party महात्मा गांधी. So in that meeting there were around 2,301 representatives and many visitors. During the proceedings, Gandhi ji recounted. तो यहाँ पर during the proceeding means when the program was going on. गांधी जी recounted, गांधी जी बताते हैं. Now गांधी जी he started telling, और क्या बताते हैं? A peasant came up to me looking like any other peasants in India. So गांधी जी यहाँ पे बताते हैं कि उनके पास एक peasant आया. Peasant means there was a farmer. और looking like वो जो farmer है वो कैसा दिख रहा था? Other peasants in India कह रहे हैं the farmer came to him. और वो जो farmer है वो हमारे जो Indian farmers होते हैं वैसे ही he was just looking like an ordinary Indian farmer. और कैसे हैं? Poor था. Underline the word emaciated. Emaciated होता है lean and thin, दुबला पतला. And said, I am Rajkumar Shukla. और ये जो peasant है he went to गांधी जी. और यहाँ पर जो है गांधी जी he is telling about the peasant. And what did he say? वो क्या बोलता है जो ये farmer है? What did he say? I am Rajkumar Shukla. Underline the next main character, that is Rajkumar Shukla. इसको underline कर लीजिए students. यहाँ पर जो है Rajkumar Shukla, this is the name of a farmer, name of a peasant who went to गांधी जी. I am from Champaran. और क्या बोलते हैं? What the peasant said? That I am from Champaran and I want you to come to my district. So here Rajkumar Shukla, one of the peasants of Indian farmer, he requested Gandhi ji. उनसे क्या request करते हैं? I want you to come to my district. कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे district आओ. कौन request करता है? The peasant. और peasant कौन है? Rajkumar Shukla. And whom did he request? He requested Gandhi ji. गांधी had never heard of the place. As you know, गांधी ने कभी भी चंपारण के बारे में नहीं सुना. अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर जो है गांधी जी बता रहे हैं लुइस फिशर को अबाउट द ईयर 1970, और 1970 से पहले गांधी जी का हिस्ट्री में कहीं कोई चर्चा भी नहीं थी. राइट? ये यहाँ पर
स्टार्ट हुआ है गांधी जी का पॉलिटिकल एरा इन द ईयर 1917 व्हेन ही वाज टेलिंग these incidences to Louis Fisher. Gandhiji had never heard of the place. It was in the foothills of the towering Himalayas near the kingdom of Nepal. और यहाँ पर जो है राजकुमार शुक्ला, he was telling him, क्योंकि जो उन्होंने कहा ना कि I have never heard of the place. So now राजकुमार शुक्ला he is telling about the place. ये चंपारण कहाँ है? अगर कोई भी आपके स्टेट के बारे में पूछता है, आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछता है, so you just how you tell to that person, कैसे बताते हो? You just give this hint कि आपने ये सुना है, वहां पर सिचुएटेड है. इन द सेम वे यहाँ पर जो है राजकुमार शुक्ला उनको बताते हैं कि हमारा जो चंपारण है, इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज. कि आपने हिमालयाज के बारे में सुना है, वहाँ हिमालयाज के फुट हिल्स पे नियर द किंगडम ऑफ नेपाल जो पड़ता है, वहीं पर ही हमारा डिस्ट्रिक्ट चंपारण पड़ता है. सो यहाँ पे इन दिस पैराग्राफ आपने बेसिकली क्या पढ़ा इस पैराग्राफ में? आपने पढ़ा है दैट देयर इज एन इंटरेक्शन ऑफ द पीजेंट विद गांधी जी. क्या रिक्वेस्ट करते हैं? वो गांधी जी को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चंपारण आओ. देन व्हाट डिड गांधी जी सेड? गांधी जी सेड कि आई हैव नेवर हर्ड ऑफ द चंपारण. तो यहाँ पर जो राजकुमार शुक्ला है, एक्चुअली ही टोल्ड अबाउट द फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल सिचुएट वेयर द स्टेट इज सिचुएटेड. तो यहाँ पर वो अपनी स्टेट की, अपने डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन बताते हैं. ओके, नाउ लेट अस मूव फर्दर. Move to third para, students. Under an ancient arrangement, ancient means प्राचीन, पुराने arrangement के according, the Champaran peasants were sharecroppers. यहाँ पर बता रहे हैं कि मतलब पुराने अरेंजमेंट, लैंडलॉर्ड जो लैंड सिस्टम है, जमींदार सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ जो पीजेंट्स थे, कहाँ पे? चंपारण में. एक्चुअली दे वर शेयर क्रॉपर्स, जो बटाई मजदूर होते हैं. और शेयर क्रॉपर्स क्या होते हैं? जो कि एक्चुअली यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स, सुनो फिर से मैं बताती हूँ. यहाँ जो पीसेस ऑफ लैंड है, दीज पीसेस ऑफ लैंड दे बिलोंग टू, ये लैंड जो पीसेस हैं वो लैंडलॉर्ड के होते हैं. वो लैंडलॉर्ड क्या करते हैं? इन पीजेंट्स को कल्टीवेशन करने के लिए दे गिव द लैंड टू दीज पीजेंट्स. वो इनको लैंड भी देते हैं. वो लैंड पे ये जो पीजेंट्स हैं, ये जो शेयर क्रॉपर्स हैं, वो वहां पर फील्ड्स में इरिगेशन करते हैं, राइट, कल्टीवेशन करते हैं. और उसी हिसाब से उस लैंड का जो रेंट होता है, कल्टीवेटेड जो फील्ड का जो रेंट होता है, वो भी लैंडलॉर्ड्स को देते हैं. तो बटाई मजदूर होता है शेयर क्रॉपर्स. राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम. तो कौन थे राजकुमार शुक्ला? राजकुमार शुक्ला भी उन शेयर क्रॉपर्स में से एक पीजन थे, एक फार्मर थे. एक्चुअली दे वर फेसिंग सम प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम इतनी ज्यादा क्रिटिकल थी कि शायद उन पीजन्स ने, फार्मर ने लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वॉइस रेज की, लेकिन कोई भी उनकी प्रॉब्लम सुनने के लिए रेडी नहीं था. इसीलिए राजकुमार शुक्ला ही हर्ड ऑफ गांधी जी, और वो गांधी जी की तलाश में गए कि हो सकता है कि अगर मैं गांधी जी को चंपारण में लेके आऊंगा, सो गांधी जी वुड सॉर्ट आउट सम सॉल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम. प्लीज अंडरलाइन, अगर यहाँ पर यह आता है कि राइट डाउन द कैरेक्टर स्केच ऑफ राजकुमार शुक्ला, अंडरलाइन कीजिए स्टूडेंट्स. Rajkumar Shukla was one of them. One of them means Rajkumar Shukla was a peasant, was a sharecropper peasant लिखोगे. Second point, he was illiterate but resolute. माना जो किसान थे हमारे वो अनपढ़ थे, but this Rajkumar Shukla, he was resolute. Resolute क्या होता है? मतलब दृढ़ निश्चय, determined, perseverance, tenacity, ये इनके सिनोनिम्स होंगे. मतलब अनपढ़ जरूर था, लेकिन दृढ़ निश्चय था, जिद्दी था कि किसी भी चीज को, अगर आप लोग किसी भी चीज को करने के लिए ठान लोगे, इफ यू आर रेजोल्यूट इनफ, सो यू विल वर्क हार्ड एंड यू विल अचीव दैट गोल. तो यहाँ पर क्या बोलोगे? यू आर एजुकेटेड एज वेल एज रेजोल्यूट आएगा. आप पढ़े लिखे भी हो और आप क्या हो? मतलब डिटरमाइन भी हो कि हमें अपना गोल अचीव करना है. लेकिन यहाँ पर ऑपोजिट कंडीशन है, इलिटरेट, अनपढ़ है लेकिन रेजोल्यूट है. He had come to the Congress session to complain
ही किसके लिए यूज हुआ है स्टूडेंट्स, अंडरलाइन कर लो किसी को डाउट हो तो, फॉर राजकुमार शुक्ला. राजकुमार शुक्ला had come to the Congress session to complain. Actually वो कांग्रेस सेशन जो मीटिंग चल रही थी वहां पर आते हैं, अंडरलाइन कर लो किस लिए, टू कंप्लेन, और किस चीज की कंप्लेन करने आते हैं, अबाउट द इनजस्टिस. इनजस्टिस क्या होता है सबको पता है, अन्याय. About the injustice of the landlord system in Bihar, underline it students, because all the peasants of Bihar, basically Champaran, यहाँ पर जो था ये जो farmers है, they were very much tortured by the injustice of the landlords. And somebody had probably said, speak to Gandhi जी. तो वहां पर राजकुमार शुक्ला, देखो बेटा यहाँ पे बार बार आपको पता चल रेजोल्यूट कि राजकुमार शुक्ला जो है मतलब वो उन पीजन्स में से थे जस्ट मीन्स ऑलवेज कीप ऑन रेजिंग वॉइस कि नहीं ये गलत है, हम लोगों को ही इतना करप्ट क्यों किया जा रहा है, राइट. हम लोग खेती भी करते हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज का खुद ही अरेंजमेंट करते हैं, और इस लैंड पे हम उनको रेंट भी पे करते हैं. और कैसा रेंट, वो इतना रेंट, इतना हैवी रेंट कि शायद उस खेती में से वो रेंट ही पे कर पाते होंगे. क्योंकि जब खेती करते हैं, when they do just irrigation, when they do farming, what they, because they have to face some natural hazards also, तो रेंट कहाँ से देंगे, राइट. तो मतलब यहाँ पर जो है वो इस इनजस्टिस के बारे में एक्चुअली किसी ने उनको कहा कि अरे तुमने गांधी जी के बारे में नहीं सुना, यू टॉक टू गांधी जी एंड गांधी जी वुड हेल्प, वो डेफिनेटली हेल्प यू. सो दिस इज द रीजन दैट राजकुमार शुक्ला just he went in search of Gandhi ji. Gandhi told Shukla he had an appointment in Kanpur. Actually वैसे हम इसको pronounce कानपुर करेंगे, उस टाइम में कानपुर लिखा जाता है. And was also committed to go to other parts of India. तो यहाँ पर कहने का मतलब गांधी जी ने कहा कि भाई मेरे तो बहुत अपॉइंटमेंट्स हैं, आई एम वेरी बिजी, आई डोंट हैव टाइम टू अकम्पनी, and was also committed to go to other parts of India. मतलब उससे पहले उन्होंने कमिटमेंट किया है कि उनको जो उनके बाकी जो काम है वो भी कंप्लीट करने हैं. शुक्ला accompanied him everywhere. Accompany क्या होता है, साथ जाना. So he so well determined, he so resolute कि शुक्ला उनके साथ साथ जाते, उनके पीछे पीछे रहते, जहां जहां गांधी जी जाते वहां वहां राजकुमार शुक्ला उनके साथ जाते. और उनकी एक ही रिक्वेस्ट थी कि प्लीज आप मेरे साथ किसी भी तरह से चंपारण चलिए. देन गांधी जी रिटर्न टू हिज आश्रम कानपुर से, और उसके बाद का आल्सो कम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में जाके शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर. देन गांधी जी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद. फिर गांधी जी अपने आश्रम जाते हैं जो कि अहमदाबाद के पास है. शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम. यही नहीं, शुक्ला एवन ही अकम्पनीड हिम टू आश्रम आल्सो. For weeks he never left गांधी side. काफी हफ्ते हो गए लेकिन उन्हें गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ा. Fix a date he begged. Again he had only one request. बार बार वो गांधी जी से बोलते कि प्लीज आप मुझे एक अपॉइंटमेंट दीजिए, एक डेट फिक्स कर दीजिए कि आप मेरे साथ किस डेट को और कब चंपारण चलो. Impressed by the sharecropper's tenacity. अंडरलाइन करो स्टूडेंट्स वर्ड tenacity. Tenacity होता है परसिवरेंस, डिटर्मिनेशन. कि जब गांधी जी ने देखा कि ये जो पर्सन है ये मतलब कितना डिटर्मिन्ड है, उन्होंने बार बार कहा आई डोंट हैव टाइम, आई हैव कमिटेड सो लॉट ऑफ वर्क, आई हैव फलाना दिलाना, वहाँ मुझे जाना है, मुझे अपॉइंटमेंट्स हैं, मुझे क्या ये जो है पार्टीज वगैरह अटेंड करना है. पर स्टिल देन उन्होंने कहा आपके पास कभी तो टाइम होगा ना, आप मेरे साथ कब चलोगे, आप मुझे ये बता दीजिए. तो उसकी ये दृढ़ निश्चय देख के, उसका ये डिटर्मिनेशन देख के, देन गांधी जी सेड एंड स्टोरी गांधी जी सेड, उसकी स्टोरी सुन के फिर गांधी जी ने कहा आई हैव टू बी इन कोलकाता ऑन सच एंड सच अ डे. कहा ठीक है उस डेट को मुझे कोलकाता जाना, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर. तुम वहां पर आ जाना, वहां से तुम मुझे लेकर के चलना, फ्रॉम वहां कोलकाता से लेके चलना मतलब टू चंपारण जहां पर वो रहता है, जहां पर ये प्रॉब्लम तुमको रेज हो रही है. मंथ्स पास्ट,
Shukla was sitting on his haunches at the appointed spot in Kolkata when Gandhiji arrived. देखो मतलब he was waiting for that day. जब गांधी जी वहां पर पहुंचे ही नहीं थे अपने अपॉइंटमेंट स्पॉट पे, इवन शुक्ला वाज सिटिंग देयर ऑन हिज हांचेस. हांचेस होते ना, अपने घुटने के बल पे बैठना. एक तरह से हम बोलते हैं कि आलती पालती मार के बैठ जाना, तो उनको भी हांचेस बोलते हैं. घुटने बेंड करके, बाकी फोर्स आपके मतलब फीट पैर आपके घुटने के बीच में होता है, उसको भी हम हांचेस बोलते हैं. एंड देन haunches at the appointment spot in Kolkata when Gandhiji arrived. He waited till Gandhi was free. जब तक गांधी जी ने अपना कुछ काम किया, so he was waiting for Gandhi. Then the two of them boarded a train for the city of Patna in Bihar. बेटा keep on underlining. यहाँ पर शुक्ला गांधी जी को कहाँ लेके जाते हैं? Where did Gandhi go? And from where did Gandhi collected the rest of the informations, the facts? How did Gandhi worked out, and how did he solve out the problem of these sharecroppers? So यहाँ पर ये incidences बहुत जरूरी हैं. So first, now they boarded a train. Now Shukla was happy that Gandhiji accompanied him. Okay, तो वहां से वो ट्रेन लेते हैं और कहाँ जाते हैं? पटना in Bihar. There Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad. अब यहाँ देखो स्टूडेंट्स, हम लोग ये मानते हैं गांधी जी बहुत रेनाउंड है in the field of political era, in the fields of just moments and politicalizer, momentarizer. But क्या ये जो फेमस पर्सनालिटीज हैं ये क्या अपने आप बन जाती है? हम लोग हमेशा जो लीडर हाईलाइट होता है उसको हमेशा ध्यान रखते हैं स्टूडेंट्स. ओ गांधी जी, अच्छा राजेंद्र प्रसाद, ओके, आई मे रिमेम्बर सो मेनी लीडर्स, राइट? बट डू वी रियली रिमेम्बर जो ये रिवोल्ट, जो ये रिवोल्यूशन लाने में, उनको आगे करने में हेल्प करते हैं, क्या कभी हम उन लोगों को याद करते हैं? रेयरली. ओके, अब राजकुमार शुक्ला है, हमने हिस्ट्री में अगर हम कहीं भी एक हाईलाइट एज अ लीडर, एज अ अवेकनिंग लीडर हमने नहीं सुना. हमने हमेशा सुना है गांधी जी. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सुना है गांधी जी. सत्याग्रह मूवमेंट सुना है गांधी जी. सॉल्व मूवमेंट सुना है गांधी जी. बट लेकिन यहाँ पर जिन्होंने गांधी को मतलब इनवाइट किया है, गांधी जी को प्रॉब्लम बताई है, नो डाउट दैट गांधी जी हैड ग्रेट पावर ऑफ टैक्टलेसनेस, बट स्टिल, लेकिन यहाँ पे और भी ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने गांधी जी को सपोर्ट किया. तो शायद ही हम हिस्ट्री में ऐसे लोगों के नाम पढ़ पाते हैं, जिसमें से राजकुमार शुक्ला एक ऐसा पर्सन है जो शायद जहां जहां गांधी जी को फेम मिला वहां वहां आई थिंक ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. सो वहां से राइट, देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ लॉयर्स नेम राजेंद्र प्रसाद, जो हम राजेंद्र प्रसाद के नाम से जानते हैं कि भाई हमारा जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ये उन्हीं का ही नाम है स्टूडेंट्स, लॉयर्स का, अगर आपको किसी को डाउट हो. सो फ्रॉम देयर यहाँ पर हमें ये पता चलता है स्टूडेंट्स कि जो राजकुमार शुक्ला है, ही वेंट टू राजेंद्र प्रसाद फॉर मेनी टाइम्स. जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं रिगार्डिंग शेयर क्रॉपर्स प्रॉब्लम, रिगार्डिंग लैंड लॉ सिस्टम, आई थिंक ही विजिटेड टू दीज लॉयर्स आल्सो. But being these lawyers were a part of Britishers faculty, so these lawyers they would not help them. So वहां पे जाते हैं राजकुमार, ये राजेंद्र प्रसाद के घर लेके जाते हैं उनको. Was out of town, but out of town means he was not at home. But the servants knew Shukla was as a poor yeoman who pestered. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स अंडरलाइन, जो भी डिफिकल्ट वर्ड आ रहे हैं आप प्लीज कीप ऑन अंडरलाइनिंग. अंडरलाइन द व्हेन ह्यूमन, ह्यूमन होता है फार्मर, फार्मर बोलो, पीजन बोलो. वो पेस्टर, पेस्टर होता है किसी को परेशान करना. ट्रबल विद, परसिस्टेंट रिक्वेस्ट, कि बार बार किसी को परेशान करना, बार बार किसी से विनती करना. तो यहाँ पे हमने देखा है राजेंद्र प्रसाद के घर में, दैट मीन्स द लॉयर वाज नॉट एट होम. कौन लॉयर, कौन? राजेंद्र प्रसाद घर पे नहीं है. द सर्वेंट वाज देयर, लेकिन जो सर्वेंट है वो शुक्ला को जानता था, राजकुमार शुक्ला को, कि भाई ये तो वही गरीब पुअर फार्मर है जो कि बार बार हमारे
मास्टर मतलब राजेंद्र प्रसाद को परेशान करता है to help the indigo sharecroppers. So they let him stay on the ground और वो जमीन पे बैठ गए. With his companion means राजकुमार शुक्ला और राजकुमार शुक्ला के साथ कौन थे? गांधी जी was there. So both of them they just sat on the ground. Gandhi, whom they took to be another peasant. गांधी जी उनके साथ थे. तो ये जो पीजन है राजेंद्र प्रसाद, ये जो सर्वेंट है राजेंद्र प्रसाद के, उन्होंने सोचा ये दोनों के दोनों पुअर ह्यूमन है. एक शुक्ला को तो जानते थे बट गांधी को वो जानते नहीं थे. जो सर्वेंट है उसको जानता नहीं था गांधी को, बट स्टिल उसको यही लगा कि अगर भाई ये पुअर ह्यूमन है, फार्मर है, जो इसके साथ जो पर्सन है वो भी एक फार्मर ही होगा, तो उसने इतना अपना उसको जानने की उसको मतलब इतना उसने इंटरेस्ट नहीं लिया. Whom they took to be another peasant. But Gandhiji was not permitted to draw water from the well, lest some drops from his bucket polluted the entire source. Underline students. That is the concept of untouchability. कि उस टाइम में अनटचेबिलिटी कितनी ज्यादा थी, जिसको हम बोलते छुआछूत. सो अब नाउ दे नीड वाटर, लेकिन उन सर्वेंट ने गांधी को परमिट होता परमिशन देना. उनको इतनी भी परमिशन नहीं दी ताकि अगर उनको प्यास लगे दे ड्रो होता पानी निकालना. कहाँ से? फ्रॉम द वेल लेस्ट. यहाँ पर जो लेस्ट है स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्योंकि है. एक हम लेस्ट यूज करते हैं मोडाल के साथ जहाँ शुड आता है. लेस्ट वॉक प्रॉपरली, राइट, वॉक प्रॉपरली लेस्ट यू शुड फेल डाउन. हम यहाँ सेंटेंस बोलते हैं जो मोडाल्स में यूज करते हैं कि ध्यान से चलो नहीं तो गिर जाओगे. बट यहाँ पर जो हमने लेस्ट यूज किया है, यहाँ पे हमने क्यों की मीनिंग में यूज किया है. एक्चुअली व्हाई दे वर नॉट अलाउड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, क्योंकि उनका ये मानना था कि वेल से पानी निकालेंगे और इफ समहाउ सम ऑफ द ड्रॉप्स ऑफ वाटर वुड फॉल बैक इनटू द वेल, इट वुड पोल्यूट द एंटायर सोर्स. एंटायर सोर्स मतलब उनको ये ऐसा लगता था पूरा पानी पोल्यूट हो जाएगा. हाउ डिड दे नो दैट ही वाज नॉट एन अनटचेबल. अब ये कैसा पता चले कि जो गांधी जी थे वो अनटचेबल नहीं थे. गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर. अंडरलाइन करो स्टूडेंट्स. सबसे पहले वो लोग कहाँ गए? राजेंद्र प्रसाद के घर गए. ही वाज नॉट एट होम. एंड आफ्टर दैट गांधी जी ने डिसाइड किया कि पहले वो मुजफ्फरपुर जाएंगे. मुजफ्फरपुर कहाँ पड़ता है? विच वॉज इन रूट टू चंपारण. इन रूट मतलब बीच में पड़ता है, राइट. अगर सपोज मान लो आप तिलक नगर जा रहे हो तो द्वारका जो है कहाँ पड़ेगा? इन रूट टू तिलक नगर, मतलब बीच में पड़ता है ना. कहीं भी देख लीजिए आप, नजफगढ़ देख लीजिए, अगर आप नजफगढ़ को क्रॉस करके कहीं और जाना चाह रहे हो और बीच में नजफगढ़ पड़ता है तो वो चीज आपकी इन रूट मतलब बीच में पड़ता है. तो चंपारण के बीच में पड़ता था और गांधी जी वहां वाई डिड गो डिसाइड टू गो फर्स्ट टू ऑब्टेन मोर. अंडरलाइन करो स्टूडेंट्स. To obtain more complete information about conditions that Shukla was capable of imparting. हाँ, ये कह सकते हैं गांधी is a well plan maker. क्योंकि अगर हमें कोई भी मोमेंट स्टार्ट करना है, कोई भी चीज अगर हमें स्टार्ट करना है तो उसके लिए प्री प्लानिंग, थॉट्स, these are a part of a system. क्योंकि हमें कोई भी काम करना चाहिए बड़े सिस्टम से करना चाहिए, वही ना सिस्टमैटिक वे, वही वर्क फ्रूटफुल होता है, राइट. अगर सपोज मान लो गांधी जी ने वेल मेड प्लान नहीं बनाते, सो व्हाट यू थिंक, वुड ही बी सक्सेसफुल इन गिविंग द विटनेस टू दीज शेयरक्रॉपर्स? होप सो नॉट. सो नाउ उससे पहले ही वांटेड टू गो टू मुजफ्फरपुर. एक्चुअली वो ये जानना चाहते थे कि कुछ ऐसे भी फैक्ट्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी भी चीजें हो सकती हैं कि शायद राजकुमार शुक्ला ने उनको नहीं बताई हो या राजकुमार शुक्ला को पता ही नहीं हो. राजकुमार शुक्ला को सिर्फ जहां पर वो अपने एरिया में रहता है सिर्फ वही इनजस्टिस, वही प्रॉब्लम से वो ज्यादा परेशान बाकी और जगह क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या सरकमस्टेंसेस चल रहे हैं, हो सकता है शायद इसको ना पता हो. दिस इज अ रीजन that Gandhi ji he wanted to go first to Muzaffarpur. And underline kilo beta about conditions that Shukla was capable of imparting.
He accordingly, यही नहीं, मुजफ्फरपुर ही नहीं गए गांधी जी. He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kripalani. अंडरलाइन करो, नेक्स्ट कैरेक्टर आपका आ रहा है, जेबी कृपलानी को उन्होंने टेलीग्राम किया. Of the Arts College in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore Shanti Niketan School. Actually ये जो जेबी कृपलानी है, ये आर्ट्स कॉलेज ऑफ द आर्ट्स कॉलेज में जो मुजफ्फरपुर में है, जहां पर इनको जेबी कृपलानी को इन्होंने कहाँ मिले थे, ये कहाँ देखा था, एट टैगोर शांति निकेतन स्कूल में देखा था. The train arrived at midnight. A train midnight means रात के 12 बजे आई. अंडरलाइन करो, टाइम क्या था, डेट क्या थी, 15 अप्रैल 1970. कृपलानी was waiting at the station because यहाँ पर गांधी जी ने जाने से पहले he just telegram to कृपलानी, और जैसे ही कृपलानी को टेलीग्राम मिला, just he went there, कि वो ट्रेन से गए थे, he went there to receive him. And what was the time? At midnight, 15 April 1970. Kiplani was waiting at the station with a large body of students. Kiplani अकेले नहीं गए उनको रिसीव करने के लिए, उनके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स गए थे उनको रिसीव करने के लिए, right? And after that, because he was a professor, Gandhi stayed there for 2 days in the home of Professor Malkani. और वहां पर जो है मलकानी के घर, प्रोफेसर मलकानी के घर गांधी जी 2 दिन रुके. और ये प्रोफेसर मलकानी कौन थे? ही इज अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल. इट वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज. एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग क्यों कहा गया स्टूडेंट्स? एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इसलिए कहा गया है क्योंकि जो भी ये प्रोफेसर है, टीचर है, एक्चुअली एट दैट टाइम इट वाज, बोलते ना, इट वाज व्हाट हैपेंड, इट वाज द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स का रूल था. और जो भी ये जो गवर्नमेंट पे जो पोस्टेड थे या पोस्टिंग थी, ये दे वर वर्किंग अंडर द ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं. दे वर द सर्वेंट ऑफ द ब्रिटिशर्स. तो उनको ब्रिटिशर्स का ऑर्डर ही फॉलो करना पड़ेगा. पर जो गांधी जी है, एक कहने के मतलब ये है दैट ही वाज एन ऑर्डिनरी पर्सन. जैसे राजकुमार शुक्ला था तो उनके हिसाब से वही ऑर्डिनरी पर्सन है ना. ये जो लॉयर्स हैं, एक्चुअली वो चाहते तो इन राजकुमार शुक्ला है या अदर जो पीजन्स है उनकी हेल्प कर सकते थे. बट जिस पोस्ट पे ये लॉयर्स हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, दे वर अंडर द फैकल्टी ऑफ ब्रिटिशर्स, कि जो शायद उनके ऑर्डर के अगेंस्ट वो उनकी हेल्प भी नहीं कर सकते. हमने हिस्ट्री में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा कि कुछ ऐसे लीडर्स भी हैं, नॉट बेसिकली लीडर्स, कि ब्रिटिश अकेडमी में या ब्रिटिश फैकल्टी में ऐसे भी इंडियंस पोस्टेड थे कि जिन्होंने ऑर्डिनरी पर्सन्स की, अपने इंडियन लोगों की उस रूल के अगेंस्ट, उस पोस्ट ब्रिटिश के रूल के अगेंस्ट उन लोगों की हेल्प की है. तो यहाँ पर भी ये लोग हेल्प करना चाहते हैं, बट यू नो दे हैव वन लिमिटेशन बिकॉज दे आर वर्किंग अंडर द ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स. Extraordinary thing in those days, Gandhiji commented for a government professor to harbor होता है शरण देना, शेल्टर देना, क्योंकि मलकानी के घर गांधी जी स्टेड फॉर 2 days, तो उसको कहा गया है हार्बर. Commented for a government professor to harbor a man like me. Harbor a man like me ordinary person. तो यहाँ पर जो है, अब गांधी जी कोई हाई फाइव पर्सनालिटी नहीं है, वो एक ऑर्डिनरी पर्सन है, एक इंडियन है, आम साधारण व्यक्ति है. In smaller localities, the Indians were afraid to show sympathy for advocate of home rule. Advocate of home rule means यहाँ पर कहा गया है जो ordinary persons हैं, जो Indian leaders हैं, who were not a part of Britishers empire, और जो लोग वॉइस रेज कर रहे हैं फॉर द फ्रीडम ऑफ देयर कंट्री, वो लोग जो वॉइस रेज कर रहे हैं अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, तो उन लोगों के लिए कहा गया. बिकॉज जो गांधी जी हैं वो भी तो राजकुमार शुक्ला की हेल्प करने के लिए आए. राजकुमार शुक्ला है वो भी तो बार बार कंप्लेन कर रहा है. जो यहाँ पर इस चीज को कहा गया है, द इंडियंस वेर अफ्रेड टू शो सिंपैथी. कौन से इंडियंस हैं? हु वर एट द ब्रिटिशर्स पोस्ट, जैसे मलकानी है, कृपलानी है, लाइक राजेंद्र प्रसाद है. इन लोगों को कहा गया इंडियंस वर अफ्रेड, वो डरते हैं, टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल. एडवोकेट्स ऑफ होम रूल मीन्स for the leaders, for the ordinary persons who were fighting for the freedom of their country or who were raising voice
against the Britishers. तो उनको कहा गया है advocates of home rule. So now students will just do up to here only, and I hope you all have got what I have taught you, students. Now I want you to just read these things once again, to go through these pages, and after that we'll do the short questions. आज तक सुनो बेटा, जहां तक मैंने पढ़ाया है, I hope you all have understood. But tomorrow, actually, I have decided